मेरे विचार ऐसे हैं कि हमारे देश में अंधों को सुरमा बांटा जाता है। हमारे देश में जिनको बाल नहीं है उनको कंघे बांटे जाते हैं। वो एक गलत प्रथा है। एजुकेशन अगर हो तो थोड़ा मानस परिवर्तित हो, ऐसी वाली एजुकेशन अगर ले आएँ। बाकी सब लगता है कहने की बातें हैं, क्योंकि आज भी मुंबई जैसे शहर में गंदगी के बहुत बड़े अड्डे हैं और उन अड्डों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन एक खुशी की बात मैं बताता हूँ। आजकल मैं क्योंकि समंदर बीच के पास ही रहता हूँ, साहिब के पास पड़ोस में, तो हम आजकल 1-2 हफ्ते से भागना शुरू किया समंदर पर। चलो 1-2 हमने टॉपी वॉपी लगा के थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। तो एक दिन हम पकड़े गए। कुछ लोग डाउनलोड करते हैं ना आपको ठीक से, तो 3-4 दिन डाउनलोडिंग में चलता है। तो बस जब हो जाता है तो तभी वो बटन दबाते हैं, फिर सीधा सामने जी। हाँ, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ये एक संस्था है, यहाँ पे हम समंदर को ब्लू कर देंगे। तो मैंने एकदम थोड़ा सुन के उनके विचार बड़ा मन में खुशी तो हुई। फिर मैंने बोला कि समंदर को तो ब्लू बाद में कर दीजिएगा, पहले जो कुत्ते यहाँ हग रहे हैं जरा वो ठीक करवा लीजिए प्लीज। तो वो एकदम थोड़ा उनका बेसिक पहले ठीक कर लो। समंदर को ब्लू तो बाद में कर लेना है, तो 100 साल बाद होगा भाई तुम्हारा समंदर ब्लू। पहले अपने आप को क्लीन करो, अपनी आत्मा को क्लीन करो, मन मस्तिष्क को। मन बुद्धि और आत्मा जब तक ना हो साथ, जब लेने की वस्तु साफ, जब लेने का पात्र साफ नहीं तो काय मिलेंगे आपको। सिग्नलों पे हमें यहाँ बहुत ज़्यादा बैगर्स आ गए हैं, तो उस वजह से भी गंदगी और उस वजह से भी शिक्षा का पता नहीं चल रहा कि हम किसी महानगर में हैं कि कहाँ हैं। असुरक्षित आप काफ़ी होते हैं और शीशे खड़कते हैं। सो इट लुक्स लिटिल, ये बेसिक चीज़ों पर पहले थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी नमस्कार। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैलाश साहब। Well, I think that we also jump in over here. I think you spoke about what are the key interventions that we can have as a takeaway from this campaign. I think you guys are the two right actors. I've been watching the show since morning. So the two actors that you picked on, one is children, and children as change ambassadors, and the second one is the behavior change and community engagement. When we talk of what the issue is, if you look at the simple case, for example, Dr. Kabir was talking about children dying. I think we also need to, at some point, take a reality check. It's all good that we're all coming together and moving this agenda forward. But in any given year, there's 1 to 1.5 lakh children in India who die due to a simple disease such as diarrhea. And 80% of those deaths could be easily prevented through simple measures. So I think involving children through curriculum, but in our experience, we're running a very incredible countrywide program, in 250 Gram Panchayat areas with our team, which basically, works on, creating the right kind of ecosystem and environment where children are able to understand them and adopt these practices. This could be through the curriculum, but this could also be simply through games. So we've, children love to play games, and they themselves are very innovative. So we've spent some time with them saying, okay, what's the best way to teach this to you? The young kid in the school whom we honored, and the reason for honoring her was that she realized this problem. That, I can't reach up to the basic. So she designed 5 basics at different levels. Children that were studying in my class or in the school, everyone had the opportunity to go and watch that. And for, this thing coming from a young kid of almost 6-7 years old, it's just fantastic. So what you're saying and what you were saying, sir, is that observing and perhaps learning is what needs to be emphasized. On a slightly lighter note, sir, you were talking about having the right to anchors. Yeah. For a moment, I thought you were talking about... No, I never thought about that. Also. And I would Cyrus was saying Cyrus that. would be horrified to say. No, I thought it was going to be you. I was very wondering if Salim was talking about cleaning hands and I've never washed my hands in my hands. I thought he was talking about you. Sir. What? You never cleaned your hands. No, my mom used to oil my hands, so I used to just do Sir, that. the very first Greenathon, sir, you shook hands with Madhuri Dixit and he said, now I'm not washing it. So that's fair. And to come
coming out and volunteering. Whatever your work you're doing, send it in to us and we will take them. Project EENA, Mumbai in India definitely needs inspiration to work towards My Clean India, and that's another picture that we've got on yeah, District Collector Pawan Kumar with us and Sanjana, special group. Come, one we move and sit down and introduce them. Just to say, it's not that difficult to come out and make a difference. You've done a lot of it actually in your area. You've set up a... And not to blame them, but coming forward independently, doing what you look upon as a credible citizen of the country, it's really marvelous. And being a corporate head, I think to be promoting the whole concept of CSR is wonderful. So if I may just ask you, how scalable is it? We've been getting a lot of people to come out and contribute and do their bit. 48 lakh hours by now, people have really, in addition to whatever corporates are doing. Truly inspirational. I'd like to begin by saying, Mr. Bachchan sir, you're such an inspiration to all of us. I mean, not only are you a legendary superstar in terms of Bollywood, but this legacy of goodwill that you're creating by being here, where all of us know that you've hurt yourself, you're injured, and yet the kind of commitment, being here for 12 hours, I think it really inspires us all to do so. So long as this commitment comes from other people as well, Joe. But it's incredible. I mean, you're like a leading light for that, and I'd really like to thank you. In terms of an approach, but I have a small project in Muttakuntla. It's a village which we've taken up in Andhra Pradesh for under my foundation, One Foundation, to create it into a smart village. And we just completed all the toilets, and it's an open defecation-free village now. We've done small things like LED, we've done small things like trash management by employing local people, creating education and awareness. And in a village of 3,099 people, it took us a little more than about 6 months to get this good. And now it's come on to almost a self-sustaining, kind of a model. So I think it's very achievable. And we need to target it on a village level, and then on a mandal level, and then further up, so we have to start from the grassroots. And something else that we're doing, which in fact I spoke with Mr. Roy also, with Dr. Roy also, in terms of associating with NDTV, is my foundation, One Foundation, along with Habitat for Humanity. We're creating new models to build 100,000 toilets across India. But we want to build them in a self-sustaining model. So we're working on the economic structures. Like, for example, we're working on a project here in Mumbai where we're bringing a set of toilets, and above that we're building a home. And we're giving people access to stay there free, and we're giving them a job to maintain the toilets. And the nominal fees that they charge works as a revenue generator for them and as a family to sustain themselves. So we're trying to create interesting models like that would further, wouldn't, in terms of OPEX, in terms of operational expenditure, wouldn't depend on CSR. So once you invest the CapEx, it sustains itself. Yeah. Right, that's another. We've heard two really interesting models that we hope are scalable and get some ideas. वो एक हैबिट फॉर्मेशन है, जैसा आप लोग भी कर रहे हैं. लोग बचपन से यदि हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है तो वो आदत बन जाती है, तो स्वच्छता के प्रति आदमी आग्रही हो जाता है. कृपा है आपकी. मिथिला जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत से आपने जो शहर हैं गोवा में, जैसे पणाजी है, मडगांव, मापसा, पोंडा, वास्को, इन सब का पालन पोषण आपने इस अभियान के द्वारा, स्वच्छ गोवा स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा आपने इनको अडॉप्ट किया हुआ है. इनका पालन पोषण आप देख रही हैं. क्या अब किस स्थिति क्या है? बहुत अच्छी स्थिति है. और अभी 3 दिन पहले मैं मडगांव गई थी, पोंडा गई थी, और वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे. पोंडा जाने के बाद मैंने कहा, रास्ते में पर है, उसके आजू बाजू बाएं दाएं जो घर है, बस वो अपना घर और वो दोनों घर को ले लें, बस इतना ही काम. अपना घर माने, मिथिला जी अगर वो साफ कर पाए, अगर वो इलाका साफ कर पाए तो बहुत कुछ हो पाएगा. मिथिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने हमें बनेगा स्वच्छ इंडिया इस कैंपेन में आप आए, आपने हमसे बात करी. और मिथिला जी, आप स्वयं इतनी अच्छी लेखिका हैं, अगर आप अपने कलम से कुछ अच्छी ऐसी बातें लिख सके. मैंने सुना अभी आपने जो कुछ पढ़ के सुनाया हमें, लेकिन और भी कुछ अगर कविता के रूप में या कुछ ऐसे. और मिथिला जी, एक और अगर आपसे रिक्वेस्ट करें, मिथिला जी एक और अगर आपसे दरखास्त करें,
हम भी अभी कुछ दिन पहले गोवा में थे और एक जो चीज़ जो दिखने को आती है, जो बहुत दुख की बात है कि हर दूसरी सड़क पर बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। अगर आप सड़कों में जाएंगी, नेहरू लेक, संगोट लेक, कहीं भी आप जाएंगी तो वहाँ इतना सारा प्लास्टिक जो कचरा है, वो काफ़ी दुख की बात है। और वो लगता है कि वो हर साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आप उस पर भी कोई मार्गदर्शन माँ के लोगों को दें तो उससे हम सब बहुत आभारी होंगे। मैं करती हूँ उसको, अभी काम बाकी है लेकिन शुरुआत हुई है, लोगों ने इसको महसूस किया है। और I think the math is interesting because his company is employing 400 people full time. So multiply 400 people by the number of hours every day that they work, by 365 days, by the number of years that he's going to run the project. So we will have a large number. Having said that, I think that what's important is some degree of administrative help. You know, my foundation has been working. So Sachin Tendulkar and I both decided to work with the Andhra Pradesh government, and we were both allotted villages to work with. And both of us have realized that the kind of proactiveness of a government, it just makes your work a lot more easier. So when people at the mandal level, when people at the panchayat level start to work with you and you start to bring in a change in the understanding of the system, there is an apathy. You know, people just dump kachra and they expect it to disappear from their door, or expect it to just lie around there because it's been doing that for so many years. That apathy has to change. And I think to a large extent the success of Swachh Bharat as an initiative is the fact that we're all sitting here and discussing it, the fact that it's now on primetime television, the fact that people are endorsing it, that it's brought the conversation, into at least it's become a major national issue, which is national consciousness, and that's what's going to start changing the apathy. That apathy at the grassroots level has to change, and the administration has to help. All right, Vivek, great point there. Thank you all. And then we had another 25,000, we all pledged number of hours. 20 lakh hours came from the first school, 27 lakh hours came from the second school. And that's how we reached this figure of 7 hours. And that question of 1 hour for the family can also complete. Yeah, that's a good one. That's a good one. Thank you. I'm so glad to hear that. So I'm going to add that to the pledge. Yes, he's a patriarch, so we follow the patriarch. Great. Okay, great. So that's being added then to the number that Amit ji actually said. You know, I think this is so wonderful. There is in your card nowadays you have to mention your blood group. I think it would be quite effective if you start saying in how many hours of social work you've done and what kind of social work. And, till Bharat is completely Swachh, I think one should continue with it and once they're satisfied with this stuff. But I think it's very important. I think that's an excellent idea. Of course, we do use Amit ji for a number of social causes here at NDTV, from Banega Swachh India, Choosing the Tiger, you get all of those added up. Yeah, sure. Yeah, also in schools, report cards, I mean, what I have noticed is maximum participation you have from children. What about their parents?
I don't see people who are middle-aged or older really pledging this kind of social service for the country. I think it's very important to Right, and well, you know, find some method of getting them to participate. It's easy to tell children what to do. But see, the idea, I think what you say is valid, but the idea was that children are the one बहुत ही कम उम्र में जो वो सीखते हैं वो सारी जिंदगी फिर उसको याद रखते हैं उसमें काम करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कैसे उनको बहुत ही कम उम्र में ये बताया जाए स्वच्छता जो अपने सारे जीवन में उसका प्रचार करें उसका उपयोग करें बट यस जो उनको सिखाने वाले हैं वो सब मिडिल एज ग्रुप है सब उनको सिखाते आपका एक टैगलाइन आता है that like what it is. Yeah, that's true. Which is nice. What else? Somewhere teach the parents and after that, पॉलीथिन में पैखाना करते हैं। स्टैटिस्टिक्स देखी गई थी तो ये पाया गया है कि more than 60 to 65% रेप्स लड़कियों के साथ उस समय हो रहे हैं जब वो टॉयलेट के लिए जा रहे हैं शौच के लिए। आपकी ग्राम पंचायत से जैसे मैंने पढ़ा कि 6 बहुएं घर छोड़ के मायके चली गई, मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि हमारे होती है ना, अगर हमारे मुंह पे कोई उनको अपशब्द कहे तो हम उसको बर्दाश्त 6,000 का है, बाकी 12,000 का है। और यहाँ पे चाहती हूँ कि थोड़ा अच्छा शौचालय का निर्माण हो और सिर्फ समस्या है इसका समाधान हम सभी को मिलजुल कर करना चाहिए और जो समस्याएं हैं उसकी समाधान क्या है हम सबको निकालना चाहिए। गांव में जो है कि हमको जो शहर में है उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। गांव में यदि गवर्नमेंट पैसा भेजती भी है तो सही तरीके से लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाता है पैसों का। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा इस पर हम सभी मिलकर विचार करेंगे और संकल्प लेंगे। हम सभी एक साथ शपथ लेंगे कि इस अभियान को और आगे तक बढ़ाया जाए और गांव की जो लड़कियां हैं बहुएं हैं उन्हें ये सब जिल्लत ना सहना पड़े, उन्हें शाम और सुबह का इंतजार ना करना पड़े, उनके घर में शौचालय हो और इज्जत और मान के सम्मान वो घर में ही शौच के लिए रहें और उन्हें सुबह और शाम का वेट ना करना पड़े। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है इस मुद्दे को जहाँ तक हो सके और हाईलाइट किया जाए और हम सभी मिलजुल कर एक मूर्ति बनाकर एक साथ एक संकल्प लें कि इस अभियान को पूरा करना है। और ये हमारा ही अभियान नहीं है, हमारे पूरे देश का अभियान है, हमारे भारत का अभियान है और प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम सबके लिए किया है, हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए किया है। इसलिए आप सबका इसमें साथ और सहयोग चाहिए। सहयोग तो हमेशा रहेगा। ये आप लोगों के अंदर ये मनोबल कैसे आता है कि अगर आप ये हमारे लिए नहीं ससुराल में शौचालय नहीं था जब आई अपने जी जी तो वहाँ पे देखी शौचालय नहीं है। अपनी सासू माँ से बोली कि माँ जी शौचालय कहाँ पे है शाम को, तो बोली कि यहाँ पे हम लोग शौचालय बाहर जाते हैं खेत में और घर में शौचालय नहीं है। हम एक दिन गई बाहर, उसके बाद हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हम लोग लोटा लेकर के बाहर जाते हैं, गंदगी इससे फैलती है, हमारे पेट में दर्द हो रहा था। तो इसीलिए तो हम अपने मायके चले गए ज़बरदस्ती। हमारे पति जो थे वो बोल रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मैं मानी नहीं, पूरे परिवार बोल रहे थे। लेकिन मैं पहले अपने घर में शौचालय बनवाई तब मैं आऊँगी। तो सोलर इंटरनेशनल वाले मुद्दा को जाने के यहाँ पे शौचालय लेने के कहा कितने ससुराल चली गई, मैं मायके चली गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे ससुराल में शौचालय बनवाए, स्नान घर बनवाए और लकड़ी रखने वाला अनाज रखने वाला घर बनवाए। उसके बाद हमारे मायके में गए, वहाँ पे बिंदेश्वर पाटिल जी गए, हमको बुलाकर लाए और 2 लाख का चेक देकर मुझे सम्मानित किए। और उसके बाद हमको कहे कि अपने घर में परिवार में अच्छे से रहना, कहें ठीक है लेकिन जरूर हम इसके बारे में आपसे और डिटेल जरूर लेंगे। जय जी, अगर आप इनमें से किसी से कुछ कहना चाहें। मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम की वजह से आप लोग यहाँ आई हैं और आप जो बात कह रही हैं इस तरह से आपकी और भी बहनें जो दूसरे प्रदेश की हैं
उनको भी आप प्रोत्साहन देंगी और वो भी आपकी तरह हिम्मत जुटाएं और खड़े हों और उससे फायदा ही होगा। ये तो तकलीफ की वजह से आपको शक्ति मिली, तो मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, तकलीफ इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि डिसरिस्पेक्ट टू विमेन, दिस इज डिसरिस्पेक्ट टू विमेन। आप अपने घर में एक लड़की को ला रहे हैं, आप कांट प्रोवाइड द बेसिक। You had many examples, as you know, from the morning. Well, You had people are actually revolted in a sense. And if you don't do this to me, I'm not going to. Sad that it has come to this. Jaji, we have with us now Shivraj Singh Chauhan is joining us now. मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आपने कहा जरूर आपके मन में है, आपके दिमाग में है, मगर भोपाल में तो नहीं है। मैं अभी पिछले हफ्ते भोपाल से लौटी हूँ और बहुत बार मैंने चेष्टा भी की कि कुछ कर सकूँ, मगर नहीं कर पाई। मेरे माता के घर के बाहर ही इतना बड़ा कूड़े का एक डब्बा पड़ा रहता है और उस डब्बे के सामने बच्चों का स्कूल है और इतनी गंदगी है, इतनी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं और मैं आपको बता नहीं सकती। और भोपाल में बस्तियों में बाहर लोग अभी भी शौच करते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। माफ़ी चाहूँगी, मगर आप ज़रूर ध्यान दीजिए और अगली बार भोपाल आऊँ तो मैं आपको आके बताऊँगी कि नहीं, आप बिल्कुल ऐसा आपने जो कहा, मैंने स्वयं ये कहा कि हर घर में शौचालय अभी नहीं है, ये बात सच है। और इसलिए हम लोग और वो कुछ कूड़े के जो डब्बे हैं जिसमें शौचालय का चल रहा है, ये बस्तियों में ही चल रहा है। हमारी झुग्गी झोपड़ी की आप जानते हैं, भोपाल को बचपन से आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको भी व्यवस्थित करके उनमें भी टॉयलेट बन जाए, क्योंकि कई बार ऐसी असुविधा होती है कि इतनी जगह नहीं होती कि अलग से वहाँ टॉयलेट बन सके। और इसलिए कोशिश ये भी चल रही है कि झुग्गियों के स्थान पर कई जगह भोपाल में हम मल्टी स्टोरी बना के छोटा लेकिन एक पक्का मकान जिसमें टॉयलेट हो, वो भी हम अपने जो बीपीएल फैमिलीज है उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनके पास झुग्गी में स्थान है वहाँ उनके यहाँ टॉयलेट बन जाए, इसका अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। और जहाँ तक भोपाल का सवाल है, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से स्वच्छ हो गया, लेकिन आप भोपाल के अनेक हिस्सों को देखेंगे और अगर तुलना करेंगे तो भोपाल बाकी शहरों की तुलना में स्वच्छ आपको नजर आएगा, सुंदर भी नजर आएगा, हरा भरा भी नजर आएगा। ये दावा कोई नहीं कर सकता कि हर गली हमारी स्वच्छ हो गई। उसके लिए हम लोग नहीं, बिल्कुल आपके घर के पास बिल्कुल उसका भी प्रयास करेंगे, उसके लिए अभियान चलाते हैं लगातार हम लोग। हमारे नगर निगम भी हमारा नगर निगम भी अगर आप देखेंगे तो स्वच्छता की दृष्टि से जब हम आपके घर जाते हैं, एयरपोर्ट से अगर जाएंगे तो पॉलिटेक्निक, हमीदिया कॉलेज, एमएलबी कॉलेज आपने देखा है, पहले उनकी स्थिति क्या थी वहाँ की और आज स्थिति क्या है। अगर आप देखेंगे दोनों तरफ सुंदर पेंटिंग्स, यहाँ की शिवराज सिंह जी, आप अगर अमित जी से भी कुछ कहेंगे, अगर कुछ अमित जी ने खुद वादा किया है कि वो इतना सारा काफी समय देंगे स्वच्छता मुख्यमंत्री जी, और जब कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े आप मुझे बताइएगा, मैं काम करके है कि वो इस तरह के अभियान में नहीं, जरूर हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे आपको कष्ट ना दें, लेकिन आप जब भोपाल आए, जब भी आपको भोपाल आने का कार्यक्रम बने तो एक कार्यक्रम इनके साथ करेंगे, वो लोगों को निश्चित तौर पर प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप मंजुला जी से पहले भी मिले थे, उन्होंने बहुत काम किया है। मंजुला वाघेला, मैं अभी वो स्वच्छ अभियान में 500 बहनों को जुड़ना चाहती हूँ और हर साल में 12 लाख घंटे तो उसमें हमारा योगदान रहेगा और और आपके 12 लाख घंटे एक साल में 12 लाख घंटे चेक किए घंटे हो गए ऑलरेडी मैं और घंटे लगाया 3 साल में आपने एक साल में और एक पर डे का 8 घंटे लगाया। सोसाइटियों में जाऊंगी, सोसाइटियों
में जाऊंगी, कॉम्प्लेक्स में, हॉस्टल में जाती हूँ पूरा। एक दिन में आप लोग कितनी महिलाएं साथ में? एक साथ 100 बहनों 100 जगह जाती है। सब अलग अलग जाती है? अलग अलग एरिया से, अलग स्कूल में जाती है, कोई ऑफिसों में जाती है, कोई कॉम्प्लेक्सों में जाती है, कोई सोसाइटियों में जाती है, अलग अलग एरिया से जाती आप लोग खुद साफ करती हैं, उनको साफ कराना सिखाती हैं? मैं पहले मैं खुद ही साफ करती थी, मैं झाड़ू पोता करके गई थी और अभी मैं साफ कराती हूँ। मगर वो जहाँ आप सोसाइटी में जाती हैं वहाँ लोगों को कहते हैं कि आज हम कर रहे हैं, कल से आपको करना है, लड़की कहती है हम वो स्वच्छता अभियान से अगर नहीं करे तो नहीं करे तो हम बोलेंगे कल हम नहीं खाएंगे, तो फिर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं वो तो फिर नहीं करते, नहीं करेंगे, फाइन करना चाहिए। हाँ फाइन करते हैं, हम फाइन करते हैं। बट मंजुला जी, मैं आपको बता दूं कि आपने जो अभी अनाउंस किया है 12 लाख घंटे जो बात आने के लिए एक साल के अंदर, तो जब हम लोगों ने आज सुबह शुरू किया था तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा लक्ष्य था कि करीब 5 लाख घंटे हम कमिटमेंट लेंगे, 5 लाख घंटों का। आपके खुद 12 लाख घंटे लेनी है और अभी तक का पूरा आंकड़ा अगर मेरी continue doing it, do it one day and who follows up? Are you conveying this to people? Are they taking it up? Everyone that came and pledged, they want to make it grow. If they're going to talk about growth, then they're going to be personally monitored and they personally see that this continues. Judge, one of the other very good things that we've seen in the last 1 year. उससे हम शौचालय बनाएंगे जो भी उसकी सज्जनों, स्वागत आपका। अमित जी आपका स्वागत, जय जी आपका स्वागत हमारे इस विशेष मुहिम में जिसका नाम है स्वच्छ बनेगा इंडिया। अमित जी, आज हम इसमें एक विशेष खेल खेलेंगे अगर इजाजत हो। हाँ, तो आज हम एक खेल खेलने वाले हैं, इसका नाम है कौन करेगा भारत क्लीन, यानी KKBC। तो खेल शुरू किया जाए। तो भारत को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान से सुनिएगा ऑप्शन। ए, मोदी जी की सरकार की। बी, अमिताभ बच्चन यानी हमारी आपकी। सी, सफाई कर्मचारी की। या फिर डी, हर एक नागरिक की। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है और 5 करोड़ रुपए जीत गए आपने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी खेल खत्म नहीं हुआ अमित जी। दूसरा सवाल जो है आपकी धर्मपत्नी से कर लिया जाए, कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, तो दूसरा प्रश्न जिया जी आपसे। सोच कर करिएगा। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए घर में जमा कचरे का क्या करना चाहिए? ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। पड़ोसी के घर में फेंक देना चाहिए। बी, बाहर सड़क पे रखना चाहिए। सी, खूब धुआं फैला के जलाना चाहिए। या फिर डी, ओहो, ये हमारा कंप्यूटर जरा क्रैश हो गया है, कोई गेस करना चाहेगा? जय जी। में सुनिए, हमारे सोसाइटी में बड़े बड़े डिब्बे दिए गए हैं जी, अलग अलग रंग के हैं। एक रंग जिसमें प्लास्टिक की बोतलें डाली जाती, एक रंग का बक्सा, एक पेटी ऐसी है जिसमें आप कूड़े डाल सकते हैं और इनको सबको अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक में बांध के उसमें रखना पड़ता है। रोज रात को घर के बाहर भी रख देते हैं, फिर वो ट्रक आके वो चीजों को ले जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। ये 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का सवाल है जी। ये सवाल ये है कि 1 करोड़ मूल्य से ज्यादा की चीज क्या होती है? ए, 2 करोड़ रुपए। बी, 3 करोड़ रुपए। सी, 10 करोड़ रुपए।
या डी स्वच्छ भारत? डी स्वच्छ भारत। वाह वाह, जोरदार तालियां अमित जी के लिए। बिल्कुल सही जवाब, आपको आपके 10 करोड़ हो गए। और सर स्वच्छ भारत की ओर अपना समय देंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर घंटे नाप रहे हैं, उसी तरह प्रत्येक जो नागरिक है देश का, बिल्कुल अगर प्रण करे कि वो इतने घंटे स्वच्छ भारत के लिए काम करेगा, तो देखिए भारत जो है वो एकदम स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल। अमित जी, आप बैक switch on once kids. वाह, Jan, अब टाइम किसी और को लेना पड़ेगा। जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब ये लाइन जो होना चाहिए आज से अभी से हर नागरिक के लिए, हर भारतवर्ष के उस व्यक्ति के लिए कि हम जहाँ खड़ा होंगे वहीं से, हाँ जहाँ खड़े होंगे वहीं से स्वच्छता शुरू होगी। हम जहाँ खड़े होंगे वहीं से स्वच्छता शुरू होगी। वहीं से स्वच्छता शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार तालियां। मान लीजिए तो इस प्रण और इस शपथ के साथ कि आज से अभी से हम इस संपूर्ण भारतवर्ष को स्वच्छ बनाएंगे, तभी स्वच्छ बनेगा इंडिया। बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कितने और घंटे हम यहाँ जमा कर सकते हैं। बहुत जल्द वापस आएंगे। हो गया? आपका नाम है प्लीज क्या करना है? अदनान सिर्फ उनका सोलो करवाना है। हो गया, लेके सिर्फ सोलो चाहिए। ओनली अरे डन 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 प्लीज, थैंक यू। कुछ भी नहीं हुआ करना, बैठ गई ऊपर छत पे जाकर जल बोर्ड में जाने ये नवंबर 11 नवंबर दिवाली वाले दिन मैं तो घर में आती मम्मी आप सारा दिन भाग गए, मेरे पति भी नहीं जल बोर्ड को भाग। कोई भी साधन जो है हमने देखा, कोई भी साधन नहीं उनके पास, कोई भी साधन नहीं। मैंने बोला था मेरे को भी ऐसी परिस्थितियों में कैसे लोग काम करवाना है, ये तो बड़ी दर्दनाक बात है। देख करके हमें बड़ा ऊपर छत पे गए थे, एक तरह से कहीं ना कहीं मन में क्रोध आता है। छत पे गया था तो उसको गैस रखी था, ऐसे खोलने लगे ना, खोलने से उसका पैर ना तो उसका तो जाल था, जबकि तो जाल होना चाहिए उसमें, ना कोई बेल्ट भी रखी, ना कोई उधर से रास्ता था, अकेला 4 आदमी अकेला था। क्या उसने पहले भी कभी शिकायत की थी कि वहाँ जो उससे पहले एक बार थोड़ी गैस लगी थी, एक बार लगी थी, लेकिन उसने बताया कि तुम चिंता करेगी, थोड़ी लगी थी। कंपनी को नहीं बताया, कंपनी को भी बताया था, लेकिन उसके बाद वो बताई। फिर अब उन्होंने क्या किया, जब सब कुछ हो गया फिर दूसरे दिन ले जाओ थे नाले में, पाइप में ऊपर से भी पाइप में अभी पाइप निकल रहा। मेरे को 11 बजे दो फोन किया कि आपका बेटा गायब हो गया। You know, I just feel to be given to work in these conditions. You have to penalize people like this. ये तो बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। कोई वक्त नहीं पर हम लोग स्वच्छता की जब बात कर रहे हैं, तो यही लोग हैं जो एक तरह से सफाई में सबसे ज्यादा उनका सबसे ज्यादा योगदान है, योगदान है, और वही सबसे ज्यादा मुसीबत उठा रहे हैं। और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन। उसके बाद मैंने बोला था मेरे बेटा 2 पाइप होते हैं। उन्होंने कहा कि आप देखिए दूसरे पाइप में मिलेगा। देखा है नहीं, फिर मैंने मीडिया वालों को बुलाया, जब खोला है, जब पाइप खोला जब मेरे बच्चा वहीं पे मिला। जी मैंने ऐसी
also the dignity of each of us. We lose dignity if we tolerate an intolerable. तो आपका कोर्ट है सर. तो ये सेफ्टी तो छोड़िए, एक छोटी सी डिग्निटी की भी बात नहीं है. आप 10,000 टन्स ऑफ गार्बेज, मेट्रिक टन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे मुंबई जनरेट करती है. इसमें मेडिकल वेस्ट होता है, इसमें बॉडीज होती है, तो क्या नहीं होता है वो अपने हाथ से. और जो गियर दिए जाते हैं सर, वो एकदम क्वालिटी नहीं है इसमें कि वो पहन के जाएगा तो वो कहते हैं कि मैं पहन के जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा. इसके लिए वो उतार के जाता है कि कम से कम वापस आ जाओ. सुधारक जी, एक तरह से अगर आप सोचेंगे इस देश में पैसे की कमी नहीं है. आप स्वच्छ भारत से हमारा काम तो क्रिएट करना, एक्नॉलेजमेंट की दूर की बात है, इमीडिएटली उसको पहले तो सबसे छोटा है अच्छी है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, मगर जब तक जिन्होंने ये गुनाह किया उनको पनिश नहीं करेंगे और पब्लिक से नहीं करेंगे, इस देश में सुधार नहीं होगा. हमारा देश भारत के साथ हम कहते हैं सीमा जी, आप बताइए जो हुआ. अब सारे डिटेल्स हमें दीजिए. हम ये स्टोरी चलाते रहेंगे जब तक किसी को पनिश नहीं मिलेगा. सही बात. ये 250 जो आपने नंबर दिखाया सबको फॉलो करें. मेरे बेटे का काम ऑपरेटर नहीं था, ऑपरेटिंग था मेरे बेटे का. ऑपरेटर का था. हमें मालूम नहीं कि ऑपरेटर होता क्या है. पहले तो टेलीफोन में लगाया. जी जी. लेकिन वो कह रहे मम्मी. Extremely difficult for all of us to see what we just saw and to hear what we just heard. But many people didn't know. I think you didn't know. And it's important to understand that Swachh Bharat is a goal that has so many aspects and so many difficult things to overcome that we need to look at how other countries overcome this. Technology is absolutely there. It starts with the awareness that certain human dignity is not an option. That every child that gets born in India needs to be able to escape poverty. That nobody should be like she is and suffer while cleaning for all of us. So the solutions are there. It is a question of setting a new goal, which is why I think Swachh Bharat is something incredible. It sets a goal of saying we are actually going to solve this problem with a clear deadline that nobody can move because of what the deadline is. It is not difficult, but it requires thousands and thousands and thousands of actions. The horrors of the city, the 1,600 children that die in India every day of diarrhea. Those are the things we're talking about. It absolutely can be done, because if you look at what needs to be done at the local level, it is simple. You need a village that decides not to defecate in the open. You need a company that is well regulated, a city government that deals with them and gives them also the investment and the money to have the technology that people don't need to do. Or maybe just a belt or a helmet. Those things can be done. The key is that we need billion people solutions. Each solution is actually achievable. And I think that awareness that you're creating is absolutely fantastic. That's why I was very keen to be with today. Money is not a problem anymore. Because it's something that cannot be shifted. It also shows how important it is. And money needs to be very, very upset. I'm upset and ashamed. Really ashamed that we are using human one single from all of you that are watching this program. That is your time. A little bit. But the success of the Swachh Abhiyan depends on all of us.
on our ability to participate in it. Look, there are those who have already taken this seriously, like a young 20-year-old cyclist who has made it his mission to tour the country. फॉरेनर्स आते हैं हमारे देश को डर्टी इंडिया बोलते हैं, वो हमारे देश को गाली नहीं दे रहे, हम लोगों को 125 करोड़ इंडियंस को गाली दे रहे हैं हमारी गंदगी करने की आदतों की वजह से। हमारा देश गंदा है और मेरा जैसा एक आम नागरिक देश के लोगों की सोच को बदल सकता है। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मेरा रिसर्च वर्क है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मैंने सोचा कि लोगों की गंदगी करने की सोच और आदतों को बदलने के लिए फिर कुछ नए तरीके से कैसे किया जाए, कुछ इफेक्टिव हो, उसका कुछ आउटपुट भी हो। तो मैंने पूरा प्लान बनाया, पूरे भारत में साइकिल से यात्रा करते हैं 25 स्टेट 450 डिस्ट्रिक्ट और लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा की गई, जिसके माध्यम से मैंने एजुकेशन, अवेयरनेस और मोटिवेशन का एक कैंपेन चलाया और पूरी तरह से साइकोलॉजिकल कैंपेन। और इस कैंपेन में मैंने कहीं भी झाड़ू नहीं लगाई और समथिंग लाइक कोई एक्टिविटी नहीं की। एजुकेशन, स्पेशली मोरल एजुकेशन, मोटिवेशन और अवेयरनेस के माध्यम से भारत के लोगों की गंदगी करने की सोच को बदलने की कोशिश की। क्योंकि मेरा मानना ये है गंदगी सड़क पर नहीं, गंदा अप्रोच दिखाना है, इंक्लूसिव अप्रोच दिखाना है और इंटीग्रेटेड अप्रोच दिखाना है, तभी हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। इकबाल, आप Well, before I say anything, I just want to Mr. Bachchan that I'm a great fan of yours. और मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। मुझे लाल बादशाह, तूफान और जादूगर जैसी फिल्में भी आपकी पसंद आई हैं। मुझे याद है कश्मीर में जब तूफान रिलीज हुई थी तो हमारे कॉलेज के सारे लड़कों ने काले उठाने से दवाई थी। हम कश्मीर से सेबों के पेड़ से और शाखों से हम वो तीर कमान बनाया करते थे, खेला करते थे। तो अब आप इस मुहिम से जुड़े हुए तो हम भी जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम भी कुछ कर सकें और कर देंगे सर स्वच्छ भारत, और जो नहीं करेगा उसको भी प्यार से सिखा देंगे। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बैक स्टेज देख रहा था बहुत कुछ, इससे पहले का जो सेगमेंट था मेरी आंखों पर आई वो देख के, तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ऐसा कुछ खास कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक इस मामले को लेकर, लेकिन अभिषेक ने बहुत कुछ किया। मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो अपने मीडियम के थ्रू जो हर जगह तक जाए, कोने कोने तक जाए। मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे पाखना बाहर होता है आज भी, तो उन लोगों को नॉलेज